Good morning, my lovely students. How are you all? I hope everyone is good. Okay, students, so today we are going to continue our lesson number 5. The name of this lesson is The Man Who Loved Trees. Yes, so today we will discuss the question answer, word meaning, dictation word, and the exercise of this chapter. So let's start. Yes, number 1 is here as a dictation word. So let's start number 1. Yes, renowned. Yes, RENOWNED, which means famous or well known. इसको हम हिंदी में बोलते हैं प्रसिद्ध. Second one is here scientist. SCIENTIST. Scientist, which means a person who is studying or has expert knowledge of one or more of the natural science. Number third is here protested. Yes, PROTESTED, which means express an objection to what someone has said or done. Okay. Number fourth is here monument. Monument को हम क्या बोलते हैं? स्मारक. Yes, monument it means a building or a statue that is built to remind people of a famous person or event. Number fifth is here journey. 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 Yes, you know, as a travel from one place to another. Number 6 is there disappoint. 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 Yes, which means as a sad or displeased means nirasha. Number 7th is here conserving. 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 Yes, means protect from harm or destruction. Number 8 is here landscape. 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 Yes, which means the land around the building. Yes, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं परिदृश्य. Number 9th is here accommodate. ACCOMMODATE, which means you know that provide clothing or sufficient space. हम क्या बोलते हैं? समायोजित करना. Number 10 is here scared. SCARRED, which means a mark left on the skin by a cut or burn that has healed. Okay, so these are the dictation words. So let's start the word meaning of this chapter. Number 1, landscape, which means the land around the buildings. Okay, जो buildings के चारों तरफ की जो land होती है उसको हम क्या बोलते हैं? Landscape. Number 2 is here accommodate. Accommodate means find a place for, मतलब किसी दूसरी place की तलाश करना, find out करना. Okay. Number 3 is here rain tree, which means a kind of flowering tree. Number 4 is here transplant. ये transplant which means move or replant at a new location. देखिए कोई भी plant किसी भी जगह पे किसी भी जगह पे है तो उसको हम वहां से move करते हैं और वापस से उसको replant करते हैं किसी दूसरी location पे. Okay, so here we use as a word transplant. Number 5 is here horticulture department, which means a department in the charge of growing and studying plants. Number 6 is here yes, renowned. Yes, which means famous or well known. Number 7 is here monument, which means a building or statue that is built to remind people of a famous person or event. हमको पता है कि कोई भी हम मॉन्यूमेंट बनाते हैं, स्मारक किसी भी पर्सन का उसकी याद में बनाते हैं या किसी भी चीज के बारे में बताते हैं. So in this chapter we already discussed about the living monuments. हम देखा था कि हमने living monuments के बारे में बात करी थी. Number 8 is here conserving, yeah, which means to avoid wasting something. Okay, here next one is here as a keep, मतलब रखना, सुरक्षित रखना. Okay. Okay, students, so let's start the question answer of this chapter. Yes, question number 1. What is Homi Bhabha's full name? Homi Bhabha का full name क्या है? Answer is Homi Bhabha's full name is Homi Jahangir Bhabha. Okay. Question number 2. Why didn't Homi Bhabha let the workers cut down the old mango tree? ये देखिए होमी बाबा ने वर्कर्स को जो ओल्ड मैंगो ट्री है उसको कट करने से क्यों रोका? देखिए आंसर इज होमी बाबा डिड नॉट लेट द वर्कर्स कट डाउन ओल्ड मैंगो ट्री. जो होमी बाबा थे वो वर्कर्स को ओल्ड मैंगो ट्री के बाद को कट करने के नहीं करने देना चाह रहे थे. क्यों? बिकॉज ही फेल्ट दैट अ ट्री हैड बीन देयर फॉर 100 years, हैड एवरी राइट टू लिव. वो ही फेल्ट, उन्होंने महसूस किया कि एक ट्री जो ट्री है जिसको 100 साल से ज्यादा हो गए हैं, सो ही हैड एवरी राइट टू लिव, तो उसको भी जीने का अधिकार है. सो दैट्स व्हाई द होमी बाबा डिड नॉट लेट द वर्कर्स कट डाउन द ओल्ड मैंगो ट्री. क्लियर? नेक्स्ट इज हियर Number 3.
What questions did Homi Baba ask the horticulture expert when he said that the tree was in a bad shape? देखिए आंसर इज होमी बाबा asked the horticulture expert. होमी बाबा ने पूछा horticulture जो expert है उनसे पूछा that had he been a doctor, अगर आप एक डॉक्टर होते would he not care for a patient? क्या आप पेशेंट के बारे में नहीं सोचते whose face has been scared? Yes, you know the scared means a mark left on a screen by a cut or burn that has healed. देखिए so in this chapter we already discussed about a tree. हम इस चैप्टर में ट्री के बारे में हम बात कर रहे हैं जिस जो क्या है 100 वर्ष पुराना हो गया है और वो बिल्कुल भी सुंदर नहीं दिख रहा है। तो हमारे जो हॉर्टिकल्चर के जो एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने कहा कि अब ये तो बैड शेप का है। यस, क्वेश्चन इज व्हाट क्वेश्चन डिड होमी बाबा आस्क हॉर्टिकल्चर एक्सपर्ट? कि क्या क्वेश्चन होमी बाबा ने हॉर्टिकल्चर एक्सपर्ट से पूछा व्हेन ही सेड, जब उन्होंने कहा कि ट्री वाज इन अ बैड शेप, कि ट्री तो बहुत ही बुरी हालत में है। तो वो क्या कर रहे थे कि उस ट्री को कट करवा रही थी, है ना। लेकिन होमी बाबा ने कहा कि आप इसको कट नहीं करेंगे। क्यों क्यों कट नहीं करेंगे? क्योंकि वो कह रहे हैं कि अगर ये बैड शेप में है तो क्या इसको जीने का अधिकार नहीं है? अगर देखिए आपके पास कोई, अगर आप एक डॉक्टर होते, अगर आपके पास कोई पेशेंट आता जिसका चेहरा बिल्कुल स्केयर्ड होता, क्या आप उसका ट्रीटमेंट नहीं करते, उसकी केयर नहीं करते? सो जस्ट लाइक ही also want to say that here is a patient is here as a tree. Yes, whose face has been scared, कि उसका फेस क्या है, बहुत ही scared है। Yes, I'm talking about the tree say which was in a bad shape, जो क्या है बहुत ही मतलब उसके जो शेप है बहुत ही बैड है। So here in this question, so Homi Baba asked the horticulture expert. Question number 4. Where did Homi Baba go for his higher studies? What did he study? देखिए होमी बाबा अपनी हायर स्टडीज के लिए कहां पर गए थे? यस, व्हाट डिड ही स्टडी? उन्होंने क्या स्टडी किया? आंसर इज होमी बाबा went to कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी फॉर हिज हायर एजुकेशन। तो देखिए जो होमी बाबा कहाँ गए थे? कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी गए थे अपनी हायर एजुकेशन के लिए। ही स्टडीज मैथमेटिक्स देयर, और उन्होंने वहां पर क्या स्टडी किया? एज अ मैथमेटिक्स। Number 5th is here. Why did Homi Baba write to J.R.D. Tata? What was the outcome of his letter? देखिए होमी बाबा ने J.R.D. टाटा को क्या लिख के भेजा, मतलब क्या लिखा उनके लिए? यस, व्हाट वाज द आउटकम ऑफ दिस लेटर? और जो उन्होंने जो लेटर सेंड किया था, उन्होंने जो भेजा था, तो उसका आउटकम क्या आया? देखते हैं आंसर। यस, होमी बाबा हैड ऑलवेज ड्रीम्ड ऑफ बिल्डिंग एन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। देखिए होमी बाबा हमेशा ही सपना देखते थे। किसका सपना देखते थे? कि एक इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, मतलब साइंस का एक इंस्टीट्यूट होना चाहिए, उसकी एक बिल्डिंग होनी चाहिए, इसका सपना देखते थे। सो ही रोट, तो उन्होंने लिखा था लेटर। यस, ही रोट टू J.R.D. टाटा अबाउट इट, तो उन्होंने J.R.D. टाटा को इसके बारे में लिखा था कि उनका ड्रीम ये है कि वो एक जो इंस्टीट्यूट ऑफ जो साइंस है उसकी बिल्डिंग देखना चाहते हैं। नाउ दिस रिजल्टेड इन ओपनिंग ऑफ टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च इन मुंबई। सो इसका रिजल्ट क्या हुआ? इसके रिजल्ट से क्या हुआ कि मुंबई के अंदर जो टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल जो रिसर्च जो सेंटर बना था, जो इंस्टीट्यूट बना है, वो क्या हो गया था? ओपन हो गया था। Yes. Question number 4. Read these lines and answer the questions. हमको इस लाइंस को रीड करना है, और आंसर देना है। Yes. Number 1. A living monument to a rare human being. Okay. So question is, what was the living monuments? Yes. In this chapter, we already discussed about the living monuments. Yes. The old mango tree that had lived for more than 100 years. Wow. द लिविंग मॉन्यूमेंट्स, जो ओल्ड मैंगो ट्री था, जो क्या होता है? हैड लिव्ड फॉर मोर देन 100 years, जो 100 साल से भी ज्यादा क्या था? वो वहां पर खड़ा था। वो क्या कर रहा था? मतलब वहां पर उसकी जो एग्जिस्टेंस थी, मतलब 100 साल से ज्यादा वो जी रहा था। यस, वाज द लिविंग मॉन्यूमेंट्स, तो उसको ये बोला गया यस लिविंग मॉन्यूमेंट। Next is, how did he become a living monument? Yes, answer is Homi Baba did not allow the tree to be cut down. Homi Baba ने allow नहीं किया उस ट्री के बारे में कि इसको काटा जाए। So in this way it become a living monument. So इस प्रकार वो क्या बन गया? एक living monument बन गया। Number 3, who is being called a rare human being? Yes, answer is Dr. Homi Baba is being called a rare human being. Number 2, the tree was transplanted and thus saved. Tree को वापस से transplant किया गया और save किया गया। Transplant, yes, you know that move and replant at a new location. किसी भी दूसरी जगह पर आपको उस tree को वापस से replant करना, उसी को हम बोलते हैं transplanted. Okay. Question is, which tree was transplanted? Yes, answer is the rain tree was transplanted.
नंबर सेकंड, व्हाई वाज इट ट्रांसप्लांटेड, कि उसको वापस से रीप्लांट क्यों किया गया था मैंगो ट्री को। देखिए सॉरी रेन ट्री को। आंसर इज द रेन ट्री वाज इन द वे ऑफ अ रोड। रेन ट्री क्या था, उस रोड के बीच में था, विच वाज टू बी बिल्ड, जो वो बनानी जानी थी, जो रोड बनानी जानी थी। आपको पता है जैसे कि कंस्ट्रक्शन हो रहा था बिल्डिंग का, और उस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग वहां पर जो रोड बनाई जानी थी, उस जो मिड में क्या था, रोड के बीच में क्या था, एक रेन ट्री था। सो नाउ यू नो दैट द ट्री वाज ट्रांसप्लांटेड, जो ट्री था उसी को वापस ट्रांसप्लांट किया, बिकॉज इट वाज द ओनली वे टू सेव इट। यही एक कारण था कि उसको बचाया जा सकता था। नंबर थर्ड, हु सेव द ट्री, किसने ट्री को सेव किया। यस, डॉक्टर होमी भाभा सेव द ट्री, डॉक्टर होमी भाभा ने इस ट्री को सेव किया था। Okay, so let's start the comprehension of this chapter. Number A, yes, match the columns to complete the sentences. Yes, number one, you have to you notice that there are the two columns here, and column A and column B. You have to match out. Yes, number one is here. Dr. Homi Bhabha was, the doctor जो Homi Bhabha थी क्या थे? Yes, a great nuclear scientist. Number second, Bhabha's painting are found. बाबास की जो होमी बाबा की जो पेंटिंग थी कहां पर पाएगी। यस, द आंसर इज इन आर्ट गैलरीज अराउंड द वर्ल्ड, मतलब पूरे वर्ल्ड में जितनी भी आर्ट गैलरीज थी वहां पर पाई जाती थी। नंबर थर्ड, बाबा ऑल्सो एंजॉय डिजाइनिंग, बाबा ऑल्सो एंजॉय डिजाइनिंग, यस, बिल्डिंग एंड गार्डन्स। नंबर फोर्थ, बाबा स्टॉप द वर्कर्स, बाबा ने वर्कर्स को स्टॉप किया, क्यों किया। यस, फ्रॉम कटिंग डाउन अ मैंगो ट्री, कि वो मैंगो ट्री को कट होने से बचाना चाहते थे। नाउ नंबर फिफ्थ, बाबा हेल्प टू ट्रांसप्लांट, बाबा ने हेल्प करी, मदद की, टू ट्रांसप्लांट व्हाट। यस, रेन ट्री, जो रेन ट्री था उसको वापस से ट्रांसप्लांट करने में बाबा ने मदद करी। Okay, so these are the comprehension. Yes, so let's start the next topic. Yes, number F. Yes, we use see to talk about something that we notice with our eyes. हम देखते हैं कि हम किसी चीज के बारे में, we use see, हम see यूज करते हैं to talk about, किसके तो कहने के लिए, something that we notice, हम नोटिस करते हैं with our eyes। अब जब हम अपनी आई से कोई चीज नोटिस करते हैं तो here we use as a word see. Okay, next is we use look, हम look यूज करते हैं when we focus our gaze on something, जब हम किसी चीज को फोकस कर रहे हैं, किसी चीज को लगातार घूर रहे हैं, तो here we use as a word look. Okay, watch, next word is watch, तो watch is used when we look at something for a period of time, जब हम बात करते हैं हम किसी वस्तु को कुछ समय के लिए देखते हैं। yes, something for a period of time, कुछ समय के लिए किसी चीज को हम देख रहे हैं, here we use as a word watch. Okay, so fill in the blanks with look, see और watch। देखिए हम कहां पर यूज करेंगे look, see और watch। देखिए जब हम अपनी आंखों से कोई चीज देख रहे हैं, हम उसके बाद बात कर रहे हैं, तो here we use see। look जब हम किसी चीज को घूर रहे हैं, ओके, हम हमारा जो फोकस है उसी पर है, तो here we use as a word look। एंड वॉच हम यूज करते हैं किसी चीज को हम कुछ पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम देखते हैं, तो here we use as a word watch. So let's start. Okay, number one is here, mummy said that we may dash television after our studies. मम्मी ने कहा कि हम पढ़ाई के बाद टेलीविजन देख सकते हैं, तो here we use as a correct word, here we write here, what we write here, yes, we write here as a watch, W-A-T-C-H. Clear? Next one is here, there is a baby plant next to mother plant. देखिए यहाँ पर एक क्या है, mother plant के बगल में एक baby plant है, so here yes हम यूज करेंगे as a word as a look, L-O-O-K. Okay, number third is here, did you dash how the dolphin did a somersault? Yes, somersault means कलाबाजी करना। क्या आपने देखा है कि देखें कि डॉल्फिन ने कैसे कलाबाजी की, तो here we write as a word, yes, did you see, S-E-E. Clear? Next word is here, if you carefully you will find there is a hidden door in the garden. अगर तुम यहाँ पर बिल्कुल ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि बगीचे में एक छिपा हुआ दरवाजा है। ओके, सो छिपा हुआ दरवाजा है, तो हम बात करते हैं यहाँ पर, तो वर्ड द करेक्ट वर्ड वी यूज हियर, यस, इफ यू लुक हियर, L-O-O-K. Next is here, I didn't know, I did not dash ऋषिका in class yesterday, कि मैंने देखा कि क्लास में, मैंने ऋषिका को कल क्लास में नहीं देखा था। Yes, here the correct word here we use I did not see. Clear? Next is here, Manan and I are going to dash a film tomorrow. So Manan और मैं
कल फिल्म देखने जा रहे हैं. So here the correct word we write here as a watch. WATCH. Okay. So now next start the next G. It says yes. Read these words as a picture, adventure, feature. Okay. The letters TURE in these words make the sound CH. Okay. Picture. Okay. So type 4 other words that end with TURE. तो हमको write डाउन करना है यहाँ पे 4 वर्ड जो किसे एंड होंगे TURE से. So let's start. Number 1 is here as we write as a structure. STRUCTURE. Clear? Next word is here. We write number 2. Here we write lecture. LECTURE. Clear? Now next word is there. Number 3. We write here literature. 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 Clear? Next number 4 is here. We write as a fracture. FRACTURE. Clear, student? So here we write the 4 words. Yes, next is here. Yes, you notice that many words in English can be used as different parts of speech. You know, that's for example, I dream of becoming a singer. Here in this sentence, dream is here as a verb. You know, action word जो भी हम बोलते हैं वो क्या होती है हमारी verb, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं क्रिया. Okay, next is Homi Bhabha's dream. Improve with the foundation of Tata Institute of Fundamental Research. Ab now in this second sentence you notice that here we use as a word dream as a noun. हमने जो word dream as a use किया है वो क्या use किया है as a noun use किया है. Okay students, so next exercise is related to these words. देखिए some words we use as a noun and some words we use as a वर्ब. कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं हम उसको नाउन की तरह भी यूज करते हैं और वर्ब की तरह भी यूज करते हैं. सो लेट्स फाइंड आउट. यस, सो द डिक्शनरी गिव्स अस इंफॉर्मेशन अबाउट व्हिच पार्ट्स ऑफ स्पीच अ वर्ड इज. तो डिक्शनरी हमको इंफॉर्मेशन देते हैं कि कौन सा स्पीच का जो कौन सा पार्ट है देखते हैं. नाउ look up a dictionary and type N for noun and V for verb for the underlined words. Clear? Number 1, oil floats on water. हम बात करते हैं कि जो तेल होता है वो पानी पर तैरता है. So here, yes, here the oil is here as a noun और verb. जब हम बात कर रहे हैं oil की, यहाँ पर जो oil है वो क्या है as a noun है. Okay, so you have to write here only N. Clear? Next one is here. Shiba will oil her hair today. शिबा आज अपने बालों में ऑयल करेंगी. तो ऑयल इज हियर. यस, वी यूज ऑयल इज हियर एज अ वर्ब. ओके, नेक्स्ट वन इज हियर. इट इज सो हॉट दैट आई नीड टू. यस, इट इज सो हॉट दैट आई नीड टू वाटर द प्लांट्स ट्वाइस अ डे. हम बात कर रहे हैं किसकी? अब वर्ब फाइंड आउट करना है, ये नाउन है. तो हम इस सेंटेंस में देखा इट इज टू हॉट, बहुत गर्मी है. यस, आई नीड टू वाटर द प्लांट्स ट्वाइस अ डे. तो मुझे दिन में 2 बार पौधों को पानी देना पड़ता है. तो हियर यू नोटिस हियर वी यूज एज अ वाटर इन दिस सेंटेंस. यस, वाटर इन दिस सेंटेंस एज अ वर्ब. ओके, next is here. Drink water is scarce in many parts of the world. So drinking water, हम बात कर रहे हैं कि drinking water की. तो drinking water is here. Drinking water here we use as a noun. अब हम बात कर रहे हैं ना ड्रिंकिंग वाटर की. तो ड्रिंकिंग वाटर की जब बात आ रही है तो हम इधर हमने ऐसे वाटर एज हमने वर्ब यूज नहीं करी है. हमने यहाँ पर ऐसे क्या यूज किया? एज ए नाउन यूज किया इन द सेंटेंस. नंबर 3, सनलाइट इज द ओनली सोर्स ऑफ नेचुरल लाइट ऑन द अर्थ. जो सनलाइट है, जो सूर्य का जो प्रकाश है, पृथ्वी पर प्राकृतिक प्रकाश का एकमात्र स्रोत है. तो नेचुरल लाइट, तो नेचुरल लाइट की हम बात करें तो हियर दिस इज अ नाउन इन दिस सेंटेंस. ओके, नेक्स्ट वन इज हियर प्लीज लाइट द दियास. तो दियास को क्या कर दीजिए? प्लीज कृपया दिए जलाइए. तो हियर यस दिस इज अ वर्ब. ओके, सो लाइट इज हियर इन दिस सेंटेंस एज अ वर्ब. क्लियर स्टूडेंट? Okay, so let's start the next. Yes, no grammar. Okay, so let's start. Yes, read these sentences. What is making that sound? यह आवाज क्या कर रही है? Next one, who is at the door? Door पर कौन है? Yes, you notice that here the words what and who are used to ask question. यहाँ पर हम word use करते हैं what और who. किसके लिए? Question पूछने के लिए. Now they stand for the thing, a person that the question is about. they वे खड़े होते हैं किसी
चीज के लिए, किसी पर्सन के लिए, दैट क्वेश्चन इज अबाउट, कि क्वेश्चन किसके बारे में है. यस, व्हाट इज मेकिंग दैट साउंड, मतलब यस द फोन, मतलब व्हाट इज मेकिंग दैट साउंड, द आंसर इज द फोन. यस, फोन इज मेकिंग दैट साउंड. हु इज एट द डोर, डोर पर कौन है, यस आंसर इज जॉन इज एट द डोर. ओके, सो व्हाट और हु रेफर टू अ नाउन. तो हम बात करते हैं व्हाट और हु किसके लिए रेफर करते हैं, एज अ नाउन के लिए. वी यूज वर्ड्स सच एज हु, व्हाट, हुज और whom and wish to ask question. क्वेश्चन पूछने के लिए. they usually come at the beginning of the questions. yes, हमेशा कहाँ पर यूज आते हैं, मतलब बिगनिंग ऑफ द क्वेश्चन. जब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं तो बिगनिंग में हम यूज करते हैं यस, हु, व्हाट अकॉर्डिंग टू अ सेंटेंस. ओके, सो नाउ हु रेफर्स टू पीपल. यस, हु किसके लिए रेफर करते हैं, पीपल के लिए. व्हाट यूजुअली रेफर्स टू ऑब्जेक्ट, और व्हाट रेफर्स करते हैं हम किसके लिए, ऑब्जेक्ट के लिए. यस, दीज आर द क्वेश्चन वर्ड्स. हु, व्हाट, व्हिच, हुज और whom. यस, हु हम यूज करते हैं कौन किसके लिए. यस, व्हाट मींस क्या, व्हिच मींस हम यूज करते हैं आल्सो व्हिच, मतलब व्हिच मींस किसका भी यूज करते हैं कई बार, और कौन भी यूज करते हैं, एज ए प्रोनाउन यूज करते हैं हम. हुज मींस किसका, whom मींस किसको. ओके, सो लेट्स आई वांट टू शेयर a pic. Yes, you notice that here we use as a who or whom. Yes, who or whom. Yes, used for a person. Person के लिए हम use करेंगे who or whom. Yes, who won the game yesterday. Clear. Whom, to whom did you give the book. Clear. Second one is here whose. ओके, यूज फॉर पर्सन टू शो पोजेशन, मतलब हमारा कोई पोजेशन किसी का अधिकार है, पर्सन के लिए यूज करते हैं और अपना पोजेशन बताने के लिए. हुज कार वाज पार्क्ड देयर जस्ट नाउ. हुज मदर वर्क एज अ नर्स इन द हॉस्पिटल. हियर वी यूज एज अ हुज. व्हाट, यूज फॉर एनिमल्स एंड थिंग. व्हाट हम यूज करते हैं किसी एनिमल्स और थिंग के लिए. व्हाट इज द कलर ऑफ हर हेयर. यस, नेक्स्ट इज व्हिच. व्हिच वी यूज फॉर अ पर्सन, एनिमल्स एंड थिंग. यस, व्हिच बॉय took my book just now. Which cat stole the fish from the basket. Which is the biggest building in this area. Yes, you student, you notice that we already discussed about the interrogative adjective. हमने यूज करे थे. एडजेक्टिव क्या होते हैं, जो बताते हैं क्या, नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं. ओके, वी ऑलरेडी डिस्कस. सो इन दिस चैप्टर वी डिस्कस अबाउट द इंटेरोगेटिव प्रोनाउन. हम जो बात कर रहे हैं वो क्या है, हमारी इंटेरोगेटिव प्रोनाउन के बारे में हम बात कर रहे हैं. ओके, सो लेट्स स्टार्ट द एक्सरसाइज. Yes, exercise is here. Number 1 is here. Choose the correct option and fill in the blanks. आपको क्या करने हैं, correct option choose करने हैं. You fill up here. You have to choose one option. Number 1, dash did you choose at the class monitor. Okay, so here we write here as a which, whom or who. Yes, which one is correct. Yes, which one is correct. Here we have to already tick here. Yes, the answer is whom. whom मैंने जैसे मैंने आपको बताया था ना, किसको. Here we use as a whom. Number 2, dash of the character in a Harry Potter book has a scale shaped like a lightning bolt on his forehead. हम बात कर रहे हैं किसकी, हम बात कर रहे हैं इसकी कि हम जो हमारा जो हैरी पॉटर है, जो कैरेक्टर की बात कर रहे हैं कि हैरी पॉटर बुक्स. यस, हैरी पॉटर की जो किताबों में से किस पात्र के माथे पर बिजली के बोल्ट के आकार का निशान है. ओके, सो करेक्ट वन इज हियर व्हिच. हियर वी यूज एज अ व्हिच, किसके. नंबर 3, डैश वाज अ स्ट्रेंज ड्रीम यू हैड. मतलब कौन सी स्ट्रेंज, कुछ अजीब जो सपना था तुम्हारा. क्या अजीब सपना था तुम्हारा. हियर द करेक्ट वन इज हियर व्हाट. Okay. Next is dash is a captain of Indian cricket team. अब आपको तो पता ही होगा इंडियन क्रिकेट टीम का कैप्टन कौन है. So here yes we take as who. Number 5 here dash is the widest smile. Yes, ये सबसे चौड़ी मुस्कान किसकी है. Yes, whose. Here correct one is here we write as a whose is the widest smile. Clear. Okay, so next one is related to also a WH word. Yes, fill in the blanks with who, whom, which, whose or what. So let's start. Yes, number 1, dash did you have for breakfast today. आज आपने नाश्ते में क्या खाया. Yes, the here we write as a what. क्या खाया. So here we write as a what. Clear. Next one, I have brought some cake to school. तो मैं आज क्या हुआ था, आज मैं जो केक है स्कूल में कुछ केक लाया हूँ. Yes, dash wants it. Yes, किसको चाहिए. Yes, we write here who wants it. Yes, dash is the this dictionary. Yes, the correct word is here whose.
WHOSE। आपको पता है whose here we use as a word whose। हमने क्या यूज किया कि ये डिक्शनरी किसकी है, ये डिक्शनरी किसका है, तो ये we use as a WH whose। So you have to write as a W as a capital here। Okay, number 4, do you know dash from the class had been selected for a football team। Okay, क्या आपको पता है कि आप जानते हैं कि क्लास में से चुना गया फुटबॉल टीम के लिए, किसको चुना गया? यस, हमने बात करें किसको चुना गया। सो हियर वी राइट हियर who। okay, number 5 is here dash did the best actor award goes to। कि बेस्ट एक्टर अवार्ड किसको दिया गया? यस, हियर वी राइट WH word whom। किसको दिया गया? यस। नंबर 6 of the two plays ओके डैश डू यू थिंक इज सुटेबल फॉर एनुअल डे। क्या हम इनमें से जो दो प्ले हैं, क्या हम इसमें से देखते हैं कि कौन सा एनुअल डे के लिए उपयुक्त है, मतलब सुटेबल है। तो हियर वी राइट यस व्हिच वन इज, यस हियर वी राइट एज अ व्हिच। नेक्स्ट वन नंबर 7 डैश वुड यू लाइक टू हैव एन आइसक्रीम और अ पेस्ट्री। कि देखिए हम क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं कि आपको आइसक्रीम खाना पसंद करेंगे या पेस्ट्री। ओके सो हियर वी राइट हियर व्हाट। क्लियर। नंबर 8 इज हियर डैश इज द अम्ब्रेला विद रेड पोल्का डॉट्स। यहाँ पर बात कर रहे हैं लाल पोल्का डॉट्स वाला छाता। अब हियर स्टार्टिंग द क्वेश्चन यस whose इज द अम्ब्रेला, whose मींस किसका है ना। तो हियर वी राइट एज अ whose। okay so here whose is the umbrella with red polka dots।